Dr. J.P. Dash is the Chief General Manager, NADP. Then we have again P.S. Karkare, is faculty here, retired from the Air Force. He takes the geopolitics and strategic affairs and security for the students of NADP. And we have Dr. Sri Mohan Agarwal, he is the Deputy General Manager of NADP. The format will today be something like this. We have a small video about NADP. Thereafter, the PowerPoint presentation by the General Manager. And after that, we have a question answer session in case you have any questions. Self-reliance is a condition for making India a strong nation, emerging as a superpower on the world stage today. Our defense industries have a long history of more than 2 centuries in the past. The valor and courage of our brave soldiers have been further enhanced by the supply of necessary arms and ammunitions, military vehicles, etc. by our defense industries. According to the needs of the changing time, they have to move forward further. Our defense industries now need to embark on the path of import substitution, diversification, new opportunities and exports. The government aims to achieve a turnover of $25 billion US, including export of $5 billion US in aerospace and defense goods and services by 2025. With this vision of Atmanirbhar Bharat in defense production, an ecosystem is being created for defense industries in India, for which a pool of managers will be required having exposure to defense production requirements. With this purpose, NADP strives with a vision to contribute to capacity building for Atmanirbhar Bharat in the domain of defense production management. National Academy of Defense Production is a premier training institute of Munitions India Limited under Department of Defense Production, Ministry of Defense. NADP has been providing induction and in-service training to the officers of Indian Ordnance Factory Service in the field of defense technology and management for over the past 40 years. Earlier, this academy has been part of the erstwhile Ordnance Factory Board, which was engaged in defense production for more than 200 years. NADP is also one of the central training institutes recognized by DOP&T. The academy is well equipped with state-of-the-art infrastructure that includes classrooms with all modern multimedia teaching aids, computer lab, a conference hall and an auditorium, a full-fledged library, and a technical exhibit center displaying a wide range of defense products and models, displaying products and processes. Well-equipped hostels, well-developed infrastructure for indoor and outdoor games and sports, gymnasium, sauna and steam park, jacuzzi and music room, a digital media production center to create audio-visual content for education and training. The faculties at this academy are well qualified and have rich experience in industry. With the changing needs of the defense production sector, NADP has also started an AICTE-approved 2-year full-time postgraduate diploma in management program with a focus on defense production. The academy has been accredited as Ati Uttam based on the National Capacity Building Standards by the Capacity Building Commission, New Delhi. With its aspiring vision, NADP looks forward to contribute to the growth of the nation's defense sector. 78, it started in 78 for training Indian Ordnance Service officers. We had got a lot of accolades, right, from golden period of training. हम लोग आज लंच कर रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नया वेबसाइट है हमारा, इसमें सारे इंफॉर्मेशन हमारा रखा हुआ है। देखेंगे ये हमारे 4 वर्टिकल है, एक तो MDP एजुकेशन है, एक तो प्रोग्राम है, एक RPI है, एक ई-लर्निंग है, और very interesting I take you through little bit of that and executive education आप देखेंगे, executive education में क्लिक किया और ये सारे हमारे कैलेंडर यहाँ आ जाते हैं, different type of training जो करते हैं यहाँ आ गया। So I go back
I go to the PGDM. This is the PGDM. I go to the PGDM, and it has got all the details. You can see what is our, who are the faculty members. You can see all the faculty members over there. Who are the guest faculty for the training placement officer, what the admission procedure. This is what exactly I will show you over here, the collaboration. ये इंस्टीट्यूट जो है, we are right now, we have the best of the institute we have, हम लोगों ने पार्टनर किए हैं. आप देखेंगे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एजुकेशन, इनका जो करिकुलम है, जो बेस्ट करिकुलम है, ये करिकुलम दैट वी हैड अडॉप्टेड. हम लोग IIM इंदौर से मेंटर्ड है. IIM वाइजैक का साथ अभी इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किए हैं जो कि EMBA प्रोग्राम के सारे DPSU एक साथ और प्राइवेट सेक्टर सब मिलके रहेगा. 8 हफ्ता इंडिया में रहेगा, और 6 हफ्ता, और बाकी वर्चुअल रहेगा. 2 वीक IIM वाइजैक में चालू हो गया अभी. 1 हफ्ता यहाँ रहेगा, 1 हफ्ता बैंगलोर में, एंड 2 वीक्स इन ESCP फ्रांस बिकॉज ग्लोबल वीजा इज रिक्वायर्ड. बाकी सारे आपका वर्चुअल रहेगा. सो ये है. देन वी हैव कल हम लोगों ने साइन किए, एक MOU साइन किए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से. So what you can see, all this thing, what exactly you can see that the best of the collaboration we have got. हम लोग सारे का यहाँ आप देखेंगे सारे collaboration जितना क्या NHRD हो गया, NITM हो गया, ISTD हो गया, सारे का membership हमारे पास है. So this is what exactly we stand for. Then leadership talk series. यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से और यहाँ स्टूडेंट को एड्रेस करते हैं, और उसको मैं बताऊंगा बाद में. So इंडोर से विजिट, ये इंस्टीट्यूट का खासियत है, हम स्टूडेंट को बाहर ले जाते हैं राइट फ्रॉम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड. ये यहाँ फॉर्टिस फैक्ट्री, चांदा, भंडारा, अंबाजारी, नागपुर, जबलपुर, हर जगह ले जाते हैं. सो यहाँ जाके जो स्टूडेंट जाके सीखते हैं, दैट एग्जैक्टली दैट इज द डिफरेंशिएशन फॉर अस. देन वी हैव this is what exactly this I will show you over here. इंटर्नशिप हमारा स्टूडेंट इतने सारे जगह में आप देखेंगे. पहले जो सिर्फ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, अभी राइट नाउ वी हैव हेल्पिंग ITC, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टेक भारत फोर्स लिमिटेड, all the things right now we are well connected to the entire Jindal Defense and Eco Defense, all of them we are connected. Then सिर्फ यहाँ पढ़ाई नहीं होती. आप देखेंगे ये सोशल इवोल्यूशन, हमारे सारे स्टूडेंट जब CSR में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ डेफेंट डाम स्कूल या पंचवटी आश्रम का स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यहाँ हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है. तो कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ हम तैयार कर रहे हैं वो सिटीजन which is future ready, and जैसे कि विकसित भारत का निर्माण करेगा, हर तरफ से करेगा. स्टूडेंट लाइफ है, इसमें सारे सब कुछ है. लेट मी गो बैक. ये हो गया RTA ऑडिट. हम लोगों ने RTA ऑडिट जितना सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया, जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए आप लोग RTA ऑडिट करेंगे. सो ये सारे हम लोग करते हैं. सो आई गो बैक. ये देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जो ई-लर्निंग है, इसमें क्या है, हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जितना ऑफिशियल है उनके लिए डिफेंस एक्विजिशन के ऊपर, डिफेंस एग्जिट पॉलिसी का ऊपर, मेक इन इंडिया ऊपर, सृजन पोर्टल का ऊपर, ये सारे हमारे कोर्सेज हम लोगों ने बना रखे सो दैट कोई भी किसी जगह से लेके कर सकता है, पढ़ सकता है. देन ये इंडियन नॉलेज सिस्टम. अभी सरकार का ये सोचना है, ये एक वीडियो चल रहा है जो कि SDG गोल का ऊपर है, आप देखेंगे जगह जगह लगा हुआ है. हम सारे फॉरेन कंट्रीज को लेके पढ़ाते हैं. तैत्तिरीय उपनिषद says, अन्नम बहुपुर्वीर तद्व्रता. Produce and सो कहने का मतलब है हम लोग हमारे अपने कल्चर के ऊपर हमारे इतना होना चाहिए. हमारे इसको ये AICTE अप्रूव कोर्स है. मैं क्विकली आई विल गो थ्रू इट बिकॉज़ ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुके हैं इसके बारे में. ये ऑलरेडी आपने देख चुके हैं. यहाँ जो कोई ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा इंपोर्टेंस होता है गवर्नेंस कैसे है. हमारे गवर्नेंस बोर्ड में CMD MIL चेयरमैन है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बट अरुण रामचंद्रन जो कि CIA डिफेंस का हेड है, ही इज बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस में. महेंद्र का राजेंद्र सिंह, ही इज पार्ट ऑफ द बोर्ड. डॉक्टर भीमराव मंत्री जो कि IIM नागपुर के डायरेक्टर, ही इज पार्ट ऑफ इट. Professor Subin Sudhir, he is in IIM Indore, he is part of the board. So very well represented, very diverse board. हमको ज्ञान देते हैं कैसे क्या आगे भी चलना है. ये जो कोर्स है, PGDM कोर्स है, आप देखेंगे ये कैसे डिफरेंट है. एक तो आप देखेंगे हर एक कोई मैनेजमेंट कोर्स होता है, वहाँ HR पढ़ाएंगे, फाइनेंस पढ़ाएंगे, मार्केटिंग पढ़ाएंगे, ये सारी चीज तो है ही है. आप सबसे इंटरेस्टिंग है ये जो डिफेंस वाला वर्टिकल है, डिफेंस एक्विजिशन कैसे होता है,
जियोपॉलिटिक्स आप पढ़ाते हैं कैसे होता है, डिफेंस एक्सपोर्ट कैसे होता है, ऑल द इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करना है इंडियन प्रोडक्ट का, ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये सब पढ़ाते हैं। ये चीजें आप देखेंगे, हर चीज आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो ये सब हम लोग एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी के ये सारे पढ़ाते हैं। सो एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ये सब करते हैं। सो हमारे जैसे कि मैंने बताया, NATP is mentored by IIM Indore। हमारे सिलेबस को उन्होंने वैलिडेट किए हैं, टाइम टू टाइम हमारा जो भी हेल्प हम चाहते हैं उनको पूछते हैं और लोग हमको गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पहले ये कभी MBA प्रोग्राम रन किए नहीं किए थे। ये देखिए हमारे स्टूडेंट लोग जो इंडस्ट्री विजिट किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, यहाँ आप जबलपुर में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, दे विजिटेड। ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि इतना ज्यादा इंडस्ट्री विजिट कराता है। हम यहाँ क्या करते हैं, सवेरे पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक ले लेते हैं, हमारे कंसल्टेंट जाते हैं फैक्ट्री में, बगल में अपना फैक्ट्री में, ये चीज को देखो ये कैसे होता है। तो वो चीज हमारे खासियत है, जो कि इंडस्ट्री कनेक्शन, जो कि कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कॉर्पोरेट साइड से हमारे जो नजरिया है, हमारे सोच है, विचार है, उसी तरफ से हम लोग पढ़ाते हैं। ये देखेंगे आपने यहाँ आगे बुटीबरी वार्डमान में डैम जो है उसके पास, यहाँ सारे जो डिफरेंट एक्सरसाइज होता है, यहाँ जाके लोग सीख लेते हैं लीडरशिप कैसे होता है और टीम बिल्डिंग कैसे होता है। ये सारे डिफरेंट एग्जीबिशन में हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, और ये मेरे इंटरेस्टिंग है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है जहां की CSR होता है और CSR में हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखेंगे हम लोग, ये पंचवटी वृद्धाश्रम हो गया, डेफिन डांस को लेकर, ये चैरिटी शो हम लोगों ने किए थे, तो ये सारे चीज यहाँ होता है। ये फिट रहने के लिए मैराथन में पार्टिसिपेट करना, योगा में करना, ये सारे क्विज कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, सिटी में दे वन द प्राइजेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड का टॉप 10 क्लब्स में ये टोस्ट मास्टर क्लब है। इसमें क्या है, कहने का सिखाया जाता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, उनके साथ हम कोलैबोरेट किए हैं। स्टूडेंट को कहने के लिए यहाँ कम्युनिकेशन स्किल उनका डेवलप होता है। ये सारे हम आईगॉट कोर्सेज का आपको दिखाए हैं, जहाँ की डिफरेंट टाइप का आईगॉट जो कोर्सेज हम करते हैं। एंड इसमें आपको ये सुन के खुशी होगा, लास्ट ईयर हम लोग यहाँ जो NATP में लोग आते थे, फिजिकली कितना लोग आएंगे, साल में करीब पहले 1000 आते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, मैन पावर 600 लोग आते हैं। लास्ट ईयर जब हम लॉन्च किए इसको 15 कोर्स करीब किए और 80,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किए और 37,000 लोगों ने कंप्लीट किए कोर्स। हमारे कोर्स रेटिंग है 4.5 के आसपास है, आउट ऑफ 5 स्केल ऑफ 5। सो इसका मतलब है हमारा जो रीच है, हम जो इम्पैक्ट करना चाहते हैं देश के लिए, वो इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सिर्फ पढ़ाई करने का काम नहीं है, बट आगे को आपको इनोवेशन करना है। ये इनोवेशन सेल हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रिकॉग्नाइज है। ये IIM नागपुर का जो इंक्यूबेटर है उनके साथ हमारा टाई अप है। और ये सारे आपको ये सुन के हैरान होगा, लास्ट ईयर 4 पैटेंट यहाँ मिला है हम लोग को, हमारे स्टूडेंट और फैकल्टी को ये 4 पैटेंट मिला है। ये फर्स्ट बैच का जो हम लोगों ने जब इंटर्नशिप के लिए भेजे थे, आप देखिए इसमें तरह तरह का इंडस्ट्री है, यहाँ लोगों ने ऑफर किए थे इंटर्नशिप। ये सेकंड बैच, अभी जो करंट बैच है सेकंड बैच में, और आप देखिए जिंदल, ITC, महिंद्रा, KPMG, टाटा, DSL के है, लोहिया ग्रुप में के है, Green Pharmaceutical, Indorama, Bolt, Delacrex, all those things people are going and we are well connected to the industries। का कहने का मतलब ये है, हमको ये कंपनी ने हमको एम्पैनल किए हैं सो दैट हमारा उनके साथ मतलब ऐसे है सपोर्टिंग मैकेनिज्म रहता है। एंड उसमें क्या होता है, जो इंटर्नशिप होता है दैट हैज गॉट अ चांस ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड टू द प्लेसमेंट, वी कॉल इट PPO। ये सारे फर्स्ट बैच आप पास आउट कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट हुआ, मार्केट अभी टाइट है पर फिर भी हमारा 100% प्लेसमेंट हुआ। ये हमारे फर्स्ट बैच का जो प्लेसमेंट हुआ है, इसमें सारे बाकी भी चल रहा है, बाकी कुछ लोग अपना बढ़ाने के लिए अपना जो भी चॉइस जगह है, चॉइस कंपनी है, बढ़ाने के लिए पीपल आर अप्लाइंग फॉर इट। बट सो फार 100% प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें आपने लोहिया ग्रुप कानपुर में है, MKU आपको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं कानपुर बेस्ड फॉर्मा में। फोर्थ इनोवेशन, ये आईटेक्स के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम चालू हुआ है, फोर्थ कोयम्बटूर में और चेन्नई में दे आर डन। एंड क्वांटम वेंचर्स ये अहमदाबाद वाला कंपनी है। तो ये सारे कंपनी में हमारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। आप देखेंगे इसके बारे में तो बोल चुका हूं आपको, हमारे कोलैबोरेशन जो है कनेक्टेड, वी आर वेल कनेक्टेड टू द एंटायर नेटवर्क। एंड ये जो है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। एंड ये सारे है, ये ऑडिट के लिए मैंने आपको बताया था, ये सारे ऑपरेशन के लिए हम लोग ऑडिट करते हैं। ये एक लॉन्च करें हम लोग यूडोक्सिया रिसर्च यूनिवर्सिटी के साथ। आज अभी हम लोगों ने 1 साल का एक रिसर्च प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है दे बी एबल टू अडॉप्ट द चैट, जो डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, SPSS
आप देखेंगे स्टाटा है, आर है, एनपीओ है, ये सारे स्किल्स वो लोग सीखेंगे सो दैट दे कैन पब्लिश इन द बेस्ट ऑफ द जर्नल्स लाइक स्कोपस, IEEE, इसमें सारे पब्लिश कर पाएंगे। ये हमारे लंच कर रहे हैं हम लोग ये इसके लिए ये इंटरनेशनल इनोवेशन प्रोग्राम है जिसमें बाकी सारी कंट्रीज का लोग रहते हैं और हमारे स्टूडेंट भी इसमें दे हैव वी आर पार्टिसिपेटिंग विद देम। So this is the life of NDP. So that's what life of NDP is just not about just studies. It's about creating a people who can steer the entire future of the nation. So that is all about NDP. I thought that brief introduction दे देंगे तो आपका आसान रहेगा. Very valid question. Course is open. Market के लिए it's open. कोई भी student जो कि graduate है यहाँ आके join कर सकता है. So that is one. सेकेंड पार्ट इज दैट आईकोड को जो कोर्स है ये पोर्टल बनाया गया है मिशन कर्मयोगी के तहत सारे सिविल सर्वेंट के लिए ओपन है। एंड सिविल सर्वेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पंचायत राज ऑफिशियल्स, लगभग 3 करोड़ लोग के लिए राइट नाउ 50 लाख का ऊपर चला गया रजिस्ट्रेशन और 3 करोड़ लोग के लिए इट इज ओपन। एंड ये क्योंकि हम लोग तो सरकार का पार्ट है, उनको गवर्नमेंट आईडी देते हैं हमारे स्टूडेंट को, उनको क्या होता है दे आर एबल टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ iPod। सर what you wanted to add was that कि यहाँ पे मतलब जैसे बच्चे कॉलेज से नॉर्मल पास आउट हो रहे हैं ग्रेजुएट्स, so how can they come? Is it open for them? What is the process? How? Yes. एडमिशन जो प्रोसेस है बेसिकली हमारे डिफरेंट चैनल लोग एग्जाम देते हैं, कैट एग्जाम देते हैं, सीमैट देते हैं, मैट एग्जाम देते हैं, MSCT देते हैं। प्लस इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है NADP एडमिशन टेस्ट करते हैं जहां की थ्रू हम लोग फिर उनको इंटरव्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट को इनटेक लेते हैं। सर स्टूडेंट कैपेसिटी कितनी है? स्टूडेंट कैपेसिटी जो है हमारा AICTE का अप्रूवल हमारा 60 का है, बट प्रोसेस देखिए इसका नाम है PGDM इन बिजनेस मैनेजमेंट। बट मैंने जैसे आपको दिखाया, मैंने चार्ट में दिखाया, देखिए एक तो जनरल मैनेजमेंट ये लोग सारे मतलब एक तो है कोई भी टॉपिक में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन यहाँ काम कर सकते हैं। सर साइबर सिक्योर वेबसाइट जो है वो अभी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। हम लोगों ने लॉन्च किए क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन है, एक सरकार का गवर्नमेंट गाइडलाइन होता है GITW, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है GITW गाइडलाइन। इसका वेरी इंटरेस्टिंग है, आपको बताएंगे क्योंकि सरकार ने बताया है एक आपको पता होगा बहुत सारे साइबर अटैक होता है बहुत सारे, तो सरकार ने बोला है आपको कोई भी करेंगे एक हमारा सिस्टम है STQC ऑडिट होना चाहिए या उसका अंदर हम लोग ऑडिट कराते हैं पहले। ये हो गया फर्स्ट लेवल ऑडिट हो गया, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट में है, एक ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंदर है सीरा करके, सेंटर फॉर इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस। वो लोग क्या करते हैं फर्दर वो लोग भी चेक करते हैं, वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे आपका डिफरेंट टाइप अटैक होते हैं, दे ट्राई टू इनिशिएट अटैक, कैन इट गो इनटू इट, सो वो फिर हमको रिपोर्ट देते हैं, उसी हिसाब से हम चेंज करते हैं। तीसरा क्या होता है आपको सरकार का वेबसाइट पे, क्योंकि आपको गाइडलाइन पता है सरकार का गाइडलाइन, जो भी होस्टिंग होगा हमारे इंडियन वेबसाइट पे इंडियन सर्वर पे होस्टिंग होना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार का NIC सर्वर से होस्टिंग किया, उनका होस्टिंग करेंगे तो उनका तरफ से भी उनका फिर ऑडिट होता है। अगर ये सारे ऑडिट पास करने के लिए हमको बहुत लंबा टाइम लग गया, बिकॉज ये सारे में सो दैट ऐसे सिक्योर है, बिकॉज डिफेंस में रहने का मतलब है कहीं भी बाहर से अटैक हो सकता है, इसीलिए हमको बहुत टाइम लगा। बट ये साइट इज वेरी सिक्योर एंड इट हैज गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट एंड इट इज राइट नाउ लाइव। ये सिस्टम है बेसिकली जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है। देखिए हम लोग अगर वॉरफेयर बताएंगे, अगर अर्थनीति बताएंगे, इकोनॉमिक्स हम फाइनेंस पढ़ाते हैं, क्यों चाणक्य को क्यों भूल जाते हैं, क्यों उसके बारे में नहीं बताते, जो वॉरफेयर बताते हैं क्यों शिवाजी महाराज का बताते नहीं, राणा प्रताप ने कैसे युद्ध किए। तो ये सारी चीज का हम लोग जब स्ट्रेटेजी पढ़ाते हैं, कैसे हम अर्थशास्त्र से कैसे ला सकते हैं, कैसे महाभारत का या रामायण का जहां भी जो चीज हुआ है सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हमारे वेद पुराण में देखिए हम पंचभूत का यज्ञ करते हैं, तो हमारी ये सारी चीज को हमको बताने का भी जरूरत है। इसीलिए हम उस चीज को हमारे जो वेद पुराण महाभारत जो उसमें गीता में जो चीज लिखा गया है उस चीज को हम पढ़ाने में हम उसको अंदर लेके आते हैं क्लास में। They have learned during the training. उसका practical application. So basically there are two types of project. One is theme based and other is sector based. Study and strategic matter. So they are doing, say, somebody is doing a study on NVT, the main battle tanks. Then they did some business analytics and data science, some projects on that.
Then, like earlier, there was a question which was asked about who are the type of students. There are basically two types. There are some sponsored students also. So with every course, there is 1 or 2 IOFS officers also doing the training. So suppose there are 25 youngsters who have come after their post-graduation. There are 2 officers who are nominated or sponsored candidates. So some of them have also been tasked by their particular ordnance factory that this is a practical problem and we want you to solve it. How to get the most efficient way of operating your machines? Can we do some savings in energy consumption? So various aspects or various themes, whether it is environment, social, governance or sustainability. So various aspects. Spokesperson MOD handled today. We've been shooting right from 7:30 to 9:30 in the morning. And we continued to with that 15 minutes about the MOD in last 11 years. So in last 11 years data I can tell you offline because net is not coming. The defense exports in last 11 years is 23,662 crores. Alright. Then defense production has hit 1.2 lakh crores in 2025, up 174%. Please, I'll share these figures. The photograph I have. I'll share the book. I'll just read it. Then the 375 million defense deals with Philippines in last 11 years I'm talking about. Defense industrial corridors, 50,000 crores. हमारे स्टूडेंट को ऐसे जब सामने बताए कोई प्रॉब्लम देते हैं, कोई लाइफ प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर सकते हैं, राइट? एंड हम लोगों ने टाई अप किए हैं सारे जितना इंस्टीट्यूशन है, JNIT, IIT, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी, सबसे टाई अप किए हैं। आई एम नागपुर से, इनफेड से किए हैं। और वहां से क्या आता है, वहां एंटरप्रेन्योर से कोई चैलेंज आता है, इनोवेशन चैलेंज आता है, तो आके हमको बताते हैं, फिर हम लोग वी ट्राई टू सॉल्व। मैंने आपको एग्जांपल दिया TASL का कुछ प्रॉब्लम दिया, इनका कुछ प्रॉब्लम दिया अंबाजेरी फैक्ट्री का। अंबाजेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन इनको देखिए, पहले जो सेल प्रोडक्शन होता था, बोले हमारे कम हो रहे हैं, हमको बढ़ाना है, सरकार के कैपेसिटी, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग ये अप्लाई किए, एक टेक्निक हम लोग साथ पढ़ाते हैं, पीछे बढ़े हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। जो जैसे उन्होंने टेक्निक अप्लाई किए, पता है ये ऐसे बढ़ सकता है, तो हमारे सिस्टम ने प्रोसेस स्टडी किए, उनको बताया, तो प्रोडक्शन बढ़ा। तो इस टाइप का नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट बट प्राइवेट, क्योंकि हम सारे को, बिकॉज हमारे स्टूडेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द एंटायर हर सेक्टर से, कुछ स्पॉन्सर्ड आपने बताया, बट हम लोग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है। हमको कोई चीज बताता है, प्रोजेक्ट करना है, हमारे स्टूडेंट जाते नहीं करते। अगर पढ़ रहा हो कि NADP से ज्वाइन करना हो तो हाउ कैन यू ज्वाइन? नागपुर के बच्चे हैं जो बहुत सारे, तो NADP ज्वाइन करना हो MBA के लिए तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर डिफेंस सेक्टर, कोई इनोवेशन होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होना चाहिए, तीसरा है ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। ये सारे टीम वर्क, कोई चीज अकेले कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज आप देखेंगे एयरप्लेन का टेक्नोलॉजी है, कहीं एआई टेक्नोलॉजी है, मटेरियल का टेक्नोलॉजी आ रहा है, एविडेंस सॉफ्टवेयर आ रहा है, हर तरह का टेक्नोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी आ रहा है। तो इसका मतलब टीम में आपको काम करना पड़ेगा, लीडरशिप होना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। सो ये सारे हम लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सना क्रिएट किए हैं, जहाँ की ये स्टूडेंट को बताया जाता है भाई ये चीज आपने देखते हैं, और उस चीज को हम देखते हैं स्टूडेंट में है या नहीं है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, मेजरली दिस इज अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेक्टर, तो नॉर्मली अगर इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर से अगर कोई ग्रेजुएशन करके आता है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। So we are also taking students from other backgrounds also because they can be suitable for HR, marketing and other areas in the company. But for operations and technology management, mostly if somebody is coming from technology background, then it will be more useful. And बाकी जो सर ने बताया वो सारी क्वालिटीज तो हम देखते ही हैं स्टूडेंट्स में होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कोई भी सिस्टम हम करते हैं, कोई कन्वीनियंट होना चाहिए, तो वहां क्या आता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी भी आता है, राइट? सो ये एस्थेटिक्स अगर देखेंगे, somebody who has got art student, he says look at aesthetics, इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखेगा एफिशिएंसी कैसे है। तो ये सारे चीज एक साथ ब्लेंड हम जब क्लास में करते हैं तब एक साथ होता है। एंड कुछ स्टूडेंट जैसे हमारे, आपको एलिबली शॉक टू नो, हम लोगों ने वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के लिए हमारे स्टूडेंट जो साइंस जो स्टूडेंट थे, दे वेंट एंड दे सेड दैट कौन सी टाइप का सैटेलाइट लॉन्च होना है उनको स्टडी करके दिए।
So same thing, people are doing wonderful job. हमारे just science का student है, they are and one of the best student, they are doing well in finance. पता नहीं उन्होंने कर दिया arts में कर दिया, but they have a knack for finance, so they are doing very well, right? सर इसमें एज ग्रुप भी जैसे आपने रखा है 20 से लेकर 45 तक के है या शायद उसके ऊपर भी है, तो ये कैसे मैनेज हो पा रहा है एज ग्रुप एक फैक्टर जो है इसमें? इसका दो तरीका है। एक तो देखिए हम लोग क्लासरूम में क्या चाहते हैं, क्यों 45 रखे मैं बता रहा हूँ। एक तो स्टूडेंट को हम लोग रखते हैं जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनको थोड़ा हायर एज ग्रुप में लेते हैं। क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है कि ऑलवेज ब्रिंग रिचनेस टू द क्लास, इसलिए हम लोग चाहते हैं कुछ एक्सपीरियंस लोग हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो क्लासरूम में डिस्कशन होता है। सेकंड इज दैट डिफरेंट सेक्टर से लोग आते हैं, उनको क्या करते हैं, सारे आयन करते हैं ब्रीज मटेरियल देते हैं हमको आपको तैयार करने के लिए, बिकॉज क्लास अगर होमोजेनियस नहीं होगा आपका कहना सही है, हम कैसे जवाब देंगे। तो उनको कुछ इनिशियली फास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में हम लोग एक महीने के टाइम पे हम बताते हैं, अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है ये चीज पढ़ लो, ये चीज पे हम आपको स्पेशली बताएंगे आपके एक्स्ट्रा क्लास के लिए। सो लगभग सब लोग एक साथ आ जाते हैं। देखिए आजकल वेरी इंटरेस्टिंग, चाहे आपको बच्चे आजकल सारे मोबाइल इतना अच्छा से डील करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हर एक आदमी को टेक्नोलॉजी से डील करना आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट, चाहे कहीं भी किसी चीज पे है आपको इस चीज में डील करना पड़ेगा। एंड आपको नॉट नेसेसरी टेक्नोलॉजी आपको बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से हैंडल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसे एक्वायर करना मुझे सीखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग, दे आर एबल टू डू इट मैनेजेबल, राइट। जहां हम स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं ना, सरकार का एक दो टाइप का प्लेटफॉर्म है। हम जब डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी करता है, सरकार का पॉलिसी उसमें दिया हुआ है, आईडेक्स पोर्टल है। आईडेक्स पोर्टल में क्या है, जो आर्म फोर्सेस ने उन्होंने क्या करते हैं, बोलते हैं ये चीज बनाना है, दे गिव अ चैलेंज, इनोवेशन चैलेंज, उसको उनको समझना पड़ता है। तो दैट इज वन। सेकंड इज दैट हमारा कोई चीज इंपोर्ट होता है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सृजन पोर्टल सरकार ने बनाया है। सारे आपको एचआर के पास जाने से उनका बारे में पता चलेगा, पीएल का जाओ बेल को पता चलेगा, सारे गवर्नमेंट ने एक पोर्टल में लिया है और सृजन पोर्टल किया है, और उसके बारे में हम लोग उनको बताते हैं भाई ये चीज इनोवेशन मार्केट में है, ये चीज चाहिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये एंड हमारा इंक्यूबेटर है, इनोवेशन सेल है, बाहर के लोगों को मिलाते हैं। तो ये सारे चीज से वो जो इकोसिस्टम होता है, एंड हम लोग का आइडिया फ्यूचर में ये है, कुछ चीज टेक्निकल वाला कर सकते हैं, कुछ चीज मैनेजमेंट वाला कर सकते हैं। तो हमारे जो जॉइंट प्रोजेक्ट हम ईएनआईटी के साथ करेंगे, उनका स्टूडेंट दे विल लुक एट द टेक्निकल एंगल, हमारे स्टूडेंट मैनेजरियल एंगल से करेंगे। सिर्फ टेक्निकल चीज से सक्सेस नहीं हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे, राइट। उसका ब्रांडिंग, उसका पोजीशनिंग, उसका मार्केटिंग, उसका फंक्शनलिटी, ऑल दोस थिंग्स आल्सो हैज टू बी सेम, राइट। या रिसेंटली हम लोगों ने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, ही इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एआई। ऑलरेडी जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का स्ट्रक्चर था, तो हमारे यहाँ जब एआई सेल का क्रिएशन हुआ था, ही वाज द हेड ऑफ एआई सेल इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड स्ट्रक्चर। तो वही हमारे यहाँ अभी एज ए कंसल्टेंट हायर हुए हैं, एंड he is going to teach AI in defense for the students, PGDM students. And also, whenever we are organizing some management development program for IOFS officers and employees of BPSU, if it is relevant to our students, we are opening that program for our students also. या फीस स्ट्रक्चर 7 लाख रुपए कोर्स के लिए और 2.5 लाख रुपए लगभग लगता है। हम लोगों ने जो वेबसाइट पे दे रखे हैं, रहने के लिए, खाने के लिए है, जो कुछ डेज कवर्स होते हैं हमको देना नहीं पड़ता है। हॉस्टल सभी के लिए, हॉस्टल सभी के लिए है। 7 lakhs 7 lakhs per semester or per year? नहीं, पर 7 lakhs for 2. सर एडमिशन प्रोसेस कैसा है वैसे, आप डिटेल थोड़ा एडमिशन बताएंगे? प्रोसेस देखिए, मैंने बताया आपको, स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ कॉमन टेस्ट देते हैं, कैट देते हैं, मैट देते हैं, सीमैट देते हैं, एमएससीटी देते हैं, ये 4 टेस्ट होता है। इस चैनल से स्टूडेंट का स्कोर अगर सही है, उनको अप्लाई करते हैं, हम लोग उनसे भी लेते हैं। और अगर इस किसी भी स्कोर टेस्ट नहीं दिए उन्होंने, तो हमारा एक अपना एडमिशन टेस्ट होता है। स्टूडेंट बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन टेस्ट देंगे, आप मेरे स्कोर कम है मैडम, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, एनडीपी में आना चाहता हूँ, तो वो लोग टेस्ट देते हैं, वो लोग फिर हम लोग को टेस्ट करके फिर उसके बाद इंटरव्यू करके फिर लेते हैं। ऑनलाइन है ये? नहीं ऑनलाइन है, फिजिकली यहाँ होता है, फिजिकली यहाँ है। Just remember, this is only the first batch has passed out. Yes. First batch. So this is just and with the 100% placement. Not many management colleges have got 100% when they are just 2 years old. So that is the kind of value is attached to the defense production NADP. That despite this first batch passing out of very management school, which is a government loan, and everybody is not placed. So that is the one thing the GM wanted to talk about.
So that is one of the USPs. Otherwise, very established where in MBA college diplomas, there